4 minutes past 10 o'clock. Now, before I start, let me ask one question. Whether you have received any email yesterday? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Then there will be two classes. Dates have been announced: 25th, 26th, 9 o'clock to 10:30. And topic has already been communicated to you. And I hope it will benefit to understand the use of statistics in economics. It will be very simple elementary issues. That is just for beginners, so that you can link these two subjects. Because statistics and economics is a very integral part of economics, especially if you want to understand economics more effectively, if you want to write the answers in a better way, then you are supposed to use a little bit of statistics and economics also. Anyway, we have arranged two special classes, and if I think that it is really you have enjoyed the classes, then we can arrange some more in future also. I'm also waiting for these two classes on 25th and 26th. Okay, it is already 5-6 minutes over. Let us start a totally new area of discussion, and which is very important. And in at least your unit 3 and 4, it has been mentioned as environment and development, and also sustainable development. That I have picked up for the day. It is basically a part of unit 3, which means sustainable development, meaning and historical evolution. That is what is in your syllabus. Is it visible to you? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Actually, this is a very, very vast topic, and many dimensions are there. But we'll not be able to discuss all the dimensions, because whatever have been prescribed in our syllabus in BA Part 2, that is meaning and historical evolution, will confine our discussion to that part. But I will give you some ideas. If you want to study yourself, you may have some more ideas about this term and its importance in a very recent time. I had given you some homework yesterday also. Have you done that, seen that part? Nobody is answering. Okay, let us start with our discussion of a new dimension of development, that is sustainable. So far, we have covered the points of economic growth, economic development, and economic progress. We have these two areas briefly. Now we know what is growth and what is inclusive growth. What is development, what is inclusive development. But now we are talking about a new dimension, that is what is sustainable development. Now, if we trace the historical evolution and then we come to the meaning. The first I'm talking about the historical evolution of this concept. And then, are you able to hear me clearly, I think? Yes, sir. Yes. Okay. Because nobody answered my question about the homework, that I thought that why there is silence. Okay, let us start with the evolution. Then I started with reference to second half of 20th century. Second half.
Now, in the second half or last half of the 20th century, now we know that we are now in 21st century. I'm talking about the 20th century, last century. There were four key themes, four major issues that emerge from collective concerns and aspirations of the world. Collective major issues, four major concerns. That is peace, freedom, development and environment. आय के समक्ष सामूहिक चिंता और सामूहिक इच्छाओं के चार प्रमुख विषय थे। शांति, स्वतंत्रता, विकास तथा पर्यावरण। Peace means peace. Two world wars, World War I and World War II. And there were armed conflicts also, war also. The entire world was looking forward for peace from war, peace from arms conflicts, race, etc. Japan had gone through the atomic attack also. The world had faced two wars that everybody wanted peace. That was one major concern. पहला शांति. Second was freedom. Freedom from colonial rule. औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, including India, was aspiring to get freedom from British rule. The number of countries in the world who were under the colonial rule, they wanted the freedom. So freedom was the second aspiration and second concern for the world. Third concern was development. You know the meaning of development now. Means, at least if we start from very elementary idea of development, in that time, when increase in income was seen as the major indicator of development at that time, then the countries wanted that the backward countries, poor countries, who are having very low income, they wanted to improve their income so that bulk of people who are under poverty traps, they may come out from the poverty, bringing poor people away from the poverty shackles. And the countries who are comparatively richer, they wanted to have a better and higher living standards and higher income. जो लोग पिछड़े हुए देश में रहते थे, तो पिछड़े हुए देशों का ये प्रमुख उद्देश्य था किस प्रकार से विकास या आय में वृद्धि के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाया जा सके, निर्धनता के जीवन से मुक्त किया जा सके। ये उनका कंसर्न था। और जो देश समृद्ध थे, उनका एक कंसर्न था कि कैसे हम अपनी समृद्धि को और बढ़ाएं, कैसे हम अपने जीवन स्तर में और सुधार करें, कैसे हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को और बढ़ाएं। An improvement in living standard and per capita income was the concern of all the countries. It was more serious concern for the poorer countries. Therefore, development was also one major concern. And the fourth and last is environment, because when people wanted to improve their living standard, they wanted to have a better environment also.
number of ideas started emerging. Institutions, law, thoughts, everything emerged relating to environment at that time. जीवन स्तर को में सुधार करने के लिए विश्व स्तर पर अनेक लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, संस्थाएं बनने लगी, किताबें लिखी जाने लगी, कानून बनने लगे। यानी चिंता में पर्यावरण या नेचर एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया था। These were four major concerns. Now, अगर हम इसको और थोड़े आगे समय में देखें या हम आज के रेफरेंस में देखें तो नाउ पीस इज नॉट अ मेजर कंसर्न बिकॉज द थ्रेट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर इज नॉट लूमिंग हाई। द्वितीय विश्व के युद्ध के पश्चात कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, इसलिए वैश्विक स्तर पर युद्ध से शांति अब वर्तमान में एक प्रमुख चिंता का विषय नहीं है। सेकंड इशू था फ्रीडम। तो अधिकांश देश जो उस समय फ्रीडम के लिए उत्सुक थे वो सब फ्री भी हो गए, इंक्लूडिंग भारत भी स्वतंत्र हो गया। तो पीस और फ्रीडम ये दोनों अब चिंता का विषय नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट निरंतर चिंता का विषय है और इन्वायरमेंट भी प्रमुख चिंता का विषय है। बल्कि हम यूं कहें कि इन्वायरमेंट ने अब चिंता का पहला स्थान ले लिया है हमारे लिए। तो now we have people are at global level, people are not concerned about peace and freedom, but we are more and more concerned about environment and development. Environment and development. I'm not saying development and environment, I'm saying environment and development. But what is environment? So I have given a very, very simple meaning of environment. Environment is where we live. हम जहां रहते हैं वही पर्यावरण है। And development is what we do in attempting to improve our lot within that abode. हम जहां रहते हैं वो पर्यावरण है और उससे बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ प्रयास करते हैं वो डेवलपमेंट है। ताकि हमारा रहन सहन बेहतर हो सके, उसके लिए हम अपने परिवेश में जो कुछ बेहतर सुधार करने के प्रयास करते हैं उसे हम विकास कहते हैं। एंड दीज टू आर इनसेपरेबल। और ये दो शब्द पृथक नहीं किया सकते, अलग अलग नहीं किया सकते, दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर नाउ। दैट linkage between these two issues lays the background of sustainable development. Now please read it again and tell me if you have any question on this part. I have very simply given you the background or development, how this concept has evolved historically. मैंने इन्वायरमेंट में बताया कि एक तरफ 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में चिंता का विषय 4 था, वहीं पर धीरे धीरे पहले 2 खत्म हो गए और अधिकाधिक फोकस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे होने लगा। और मैंने कहा इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी, बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे विचार बने, बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई। I mean, so many stakeholders started giving and contributing
towards the environment, giving their ideas and contributing to the environment. Is there any question from your side? No, sir. Okay. No, sir. Then now we focus on last two. मैंने कहा it is environment and development that combines together to give you the idea of the evolution and visual meaning of the term sustainable development. Now, there are some milestones in the area of environmental development, environmental concern that emerged since last half of 20th century. तो हम इसमें देखें, जब ये चिंताएं थी तो इन्वायरमेंट की चिंता के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए. अगर हम लोग उसको ट्रेस करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, तो हमें इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट आसान लगेगा. एंड आई हैव पिक्ड अप a few milestones which are very important not only for this particular issue but as separate component also for so many examinations. And I repeated that sustainable development and environment is a compulsory part of every general studies, whether it is UPSC or state examinations or any syllabus. Environment is an integral part of it. Therefore, we must understand briefly each and every terminology and concept and organizations, and I will keep on touching most important points and tell you how questions have also been asked in almost all the examinations. Let us develop its historical evolution by going through some milestones with reference to the fourth issue, that was environment. I started in the form of IUCN 1948. Again, 20th century, mid of the 20th century, 1948. Very briefly, I have given you the idea so that we can develop the concept. 1948, an organization called International Union for Protection of Nature was founded at Fontainebleau, a place near Paris, in 1948. 1948 में पेरिस के निकट एक स्थान है फॉन्टेनब्ल्यू, वहां पर एक संगठन की स्थापना की गई. उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर. In 1956, it was renamed as International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 1956 में इस संस्था का नाम बदला गया और बदल के कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति व प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन, known as IUCN. IUCN, that is International Union of Conservation of Nature. IUCN. That was the first important organization for nature or for you can say a unique partnership of the global environment community. ये सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच का एक भागीदारी आधारित विशेष समूह है
जो समय के साथ साथ वैश्विक पर्यावरण समुदाय का एक प्रमुख अग्रणी संगठन बन गया है, दैट इज IUCN। जो लास्ट पॉइंट है पहले उसको देखिए, फिर मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज रेड डेटा बुक। मैं लिखा कि IUCN मेंटेन्स एन इंटरनेशनल लिस्ट पब्लिश्ड एज रेड डेटा बुक। IUCN के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सूची बनाई जाती है और प्रकाशित की जाती है जिसको रेड डेटा बुक कहा जाता है, इन विच स्पीसीज, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, फ्लोरा फौना बोथ, जिसमें प्रजातियों, पशु पक्षी भी हैं और वनस्पतियां भी हैं, उन्हें क्लासिफाइड इनटू 9 डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन, थ्रेट एटसेट्रा, जिसमें प्रजातियों को उनके द्वारा संभावित जोखिमों के आधार पर, उनके विलुप्त हो जाने की संभावनाओं के आधार पर और उनके अस्तित्व पर खतरे के आधार पर उन्हें 9 अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, श्रेणी में बांटा जाता है। तो रेड डेटा बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ स्पीसीज है, जो संकटग्रस्त जीवधारियों तथा वनस्पतियों की सूची प्रदान करती है और ये चेतावनी देती है कि ये अब अस्तित्व विहीन हो जाने के खतरे से युक्त हैं, so that people can look at the list and take the required steps to conserve these species। कंजर्वेशन के लिए कदम उठाए जा सके, उसके लिए एक चेतावनी देने वाली सूची है। रेड मतलब खतरा, यानी अब ये स्पीसीज खतरे की स्थिति में आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। Now come to third point. The IUCN had published a report in 1980 entitled World Conservation Strategy। 1980 में IUCN ने विश्व संरक्षण रणनीति प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि अगर हमें डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना है तो उसके लिए हमें संरक्षण, स्पीसीज का संरक्षण, नेचर का संरक्षण ये करना बहुत आवश्यक है, विशेषकर अगर हम सतत विकास करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ उसमें उन्होंने कहा कि प्रजातियों के लिए, पूरी प्राकृतिक प्रणाली के लिए और सभी संसाधनों के लिए जो हम उनका उपयोग करते हैं वो उपयोग सतत रूप से होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो वी हैव suddenly jumped to 1980, although I will give you historical development, but since we were discussing IUCN, that I wanted to give you some idea about this also. Let us have some more idea about IUCN. Please keep on reading the pages that I am showing you, and you please ask any question if you want to understand any term a little wider meaning. Let us first take IUCN little forward. Basically, the first milestone was setting up of IUCN 1948, and some of its activities that I am mentioning again in next point, that is there. IUCN's work is driven by two features of life today. IUCN के जो क्रियाकलाप हैं वो आज के हमारे जीवन के दो
आयामों, दो विशेषताओं पर आधारित है। नंबर वन, global production and consumption patterns are destroying our life support system. पहला तो यह है कि हम जानते हैं कि जो वैश्विक उपभोग तथा उत्पादन प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे जीवन को, हमारे लाइफ सपोर्टिंग जीवन सहायक प्रणाली को अर्थात नेचर को नष्ट कर रही हैं एट persistent and dangerously high rates, जो निरंतर और बहुत गंभीर उच्च स्तर पर वो हमें नष्ट कर रही है। That is the first feature of life today. If we look at the global system of production, if we look at the global system of consumption, then we realize that actually such pattern of production and consumption both are adversely affecting our life supporting system, that is nature, and that is not at a very low rate but a very high rate, and continuously it is affecting. That is the first feature on which IUCN focuses its work. Second point is, and people, communities, governments, and private sectors are underusing the potential power of nature and solution it can provide to global challenges in fields such as climate change, food security, social and economic development. दूसरी बात यह है कि लोग, समुदाय, सरकारें और निजी क्षेत्र भी, ये सभी प्रकृति की जो क्षमता है, प्रकृति द्वारा समस्याओं के समाधान प्रदान करने की जो क्षमता है, कुछ समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक व आर्थिक विकास, अर्थात इन क्षेत्रों में जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का समाधान करने में प्रकृति की जो क्षमता है, हम उन क्षमताओं का भी अल्प उपयोग कर रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ लोग जिस प्रकार के प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न को बनाए हुए हैं, वो नेचर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत घातक है और लगातार घातक है। ये पहला है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नेचर द्वारा समाधान करने की जो क्षमताएं हैं, हम लोग उन क्षमताओं का भी उपयोग बहुत अल्प मात्रा में कर रहे हैं। These two features of life today gives the scope of actions for IUCN. इन दो स्वरूपों ने IUCN के क्रियाकलापों का आधार निर्मित किया है। Therefore, IUCN calls for nature-based solutions related to 3 key areas. अभी आपने ये लिखा था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो IUCN जो अपनी स्ट्रेटजी है, उसके लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों में प्रकृति आधारित समस्याओं का आह्वान करता है। पहला पॉइंट था वैल्यूइंग एंड कंजर्विंग नेचर। पहला कहता है कि प्रकृति का मूल्यांकन किया जाए और प्रकृति को संरक्षित किया जाए। यह पहला है। That is, enhances IUCN's heartland work on biodiversity conservation, emphasizing both tangible and intangible values of nature. तो पहला इश्यू है
प्रकृति का मूल्यांकन और प्रकृति का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रकृति को मूल्य प्रदान करना। सेकेंड पॉइंट है अफेक्टिंग एंड इक्विटेबल गवर्नेंस ऑफ नेचर्स यूज। दूसरा है कि जो प्रकृति का हम उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग का स्वरूप प्रभावशाली हो और समता आधारित भी हो। effective and equitable governance of nature's use. जैसे considerates IUCN works on people nature relation, अर्थात लोग और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको सुदृढ़ बनाना। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और दायित्वों को स्पष्ट करना। एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नेचर, तथा प्रकृति के राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बेहतर करना। थर्ड पॉइंट, डिप्लॉइंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंजेस इन क्लाइमेट, फूड एंड डेवलपमेंट। जलवायु के क्षेत्र में, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए प्रकृति आधारित समाधान प्रदान करना। ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको आप टू फीचर्स के सेकंड पॉइंट्स जो मैंने पॉइंट 1 2 पर लिखा उससे जुड़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वहां पर लास्ट में लिखा ही था ग्लोबल चैलेंज द फील्ड सच एज क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, सोशल डेवलपमेंट। तो वहां पे ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए, फूड के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेचर बेस्ड सोल्यूशन प्रदान करना। And that is when we talk about nature's contribution to tackle these problems of sustainable development, particularly in climate change, food security, and economic development, it means we are talking about nature-based solution for human-made problems. समस्याएं मनुष्य ने उत्पन्न की हैं, उन समस्याओं के लिए हम प्रकृति आधारित समाधान का मार्ग ढूंढ रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा हम कैसे समाधान कर सकते हैं। Please read it again and tell me if you have any question. I have very briefly covered IUCN, which is very, very important organization, but I have covered a couple of points highlighting a red data book and then highlighting world conservation strategy based on 2 features of life and 3 areas of solution that IUCN calls for. So on this second key area, what does that mean, political economy of nature? I'm a bit confused about it. Political economy of nature. Okay, 1 point. Any other point? No, sir. Okay. We always see economics. Right now, we see economics as a compact and independent subject. Right now, we see. But earlier, economics was not a subject in itself. It was known as political economy. If you read the classic books of David Ricardo, etc.,
the titles were political economy, not economy, and that was I was discussing yesterday also in some references. Number two, if we look at socio-economic structure of any country, it has two broad components. One is economy, which is the base of any society, a base for survival. That is economy. All production, consumption, exchange, distribution, etc., 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 are covered under the base of economy. On this base, the superstructure is created. There is superstructure. The superstructure involves all other dimensions, such as politics, such as religion, such as legal system, such as communities, etc., etc., etc. These all are known as superstructure. Base is economy. Superstructure involves all these social dimensions of society or community. Now, out of this social superstructure, the most important is politics or political system. I hope you understand. And these two parts of the socio-economic structure, that is base is economy and upper side is superstructure, and these two parts are interacted and they keep on interacting with each other. They are not only linked to each other, but they keep on interacting on each other. And if they are not able to go together, then one socio-economic system is replaced by a new socio-economic system. That is why we have the terminologies like socialism. In socialism also there is economic base, there is superstructure. Capitalism, in capitalism also we have economic base, superstructure. Mixed economy, both are there. If you trace the history of socio-economic changes, so you will find that these changes has happened since the evolution of mankind. I hope you are getting my point. Now I am coming to your query. What is political economy of nature? You delete the term nature and tell me what is political economy first. Then I will link the nature also. What do you mean by political economy? Sir, I think the interrelationship between something like individual हो गया या फिर किसी चीज के Not between something. जैसे हमने कहा कि देखिए किसी भी समाज का आधार वो तो आर्थिक होगा. Yes, sir. Because हमने पहले भी कहा था the most important objective of life is life itself. ये बात आपको समझा देता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जीना ही तो है. और for life you need food, clothes, shelter and other human wants. And that you can get only through economic activities of production, of consumption, of exchange, of distribution, etc. तो कोई भी समाज आर्थिक गतिविधियों के आधार पर ही तो जीवित रहेगा. लेकिन इसका जो ऊपरी ढांचा है, सुपरस्ट्रक्चर जो है, उसमें बाकी सब आ जाते हैं. जिसमें मैंने कहा दर्शन भी आएगा, धर्म भी आएगा, कानून व्यवस्था भी आएगी, राजनीति भी आएगी, सभी चीजें उसमें आ जाएंगी. जो ये ऊपरी ढांचा है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीति है या एक पॉलिटिकल सिस्टम है. सुपरस्ट्रक्चर और बेस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं
और एक दूसरे के साथ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं निरंतर करते हैं। जब ये एक दोनों के साथ चल सकते हैं तब तक एक प्रकार का ढांचा रहेगा। अगर दोनों में टकराहट होगी, चल नहीं पाएंगे, तो कोई एक ढांचा बदलकर किसी एक नए ढांचे का रूप ले लेगा। और हम लोग देखते हैं कि विश्व में बहुत सारे इस प्रकार के ढांचे समय के साथ साथ बदले हैं, अपनाए गए हैं। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं तो आपको ये बात और आसान लगेगी समझ पाना। ये बताइए कि इंडिया में 1990s से पहले, हमने चर्चा काफी की थी इसकी प्लानिंग में भी, और 1990s के बाद, प्री एंड पोस्ट 90s, इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर, हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है या बिल्कुल हल्का फुल्का हुआ है? सर काफी हुआ। काफी हुआ है। बहुत हुआ है सर। बहुत हुआ है। कोई एक एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल दें कि 90 से पहले क्या था, 90 के बाद क्या है। कोई एक एग्जाम्पल दे दें हमें। सर लाइसेंसिंग सिस्टम, लिबरलाइजेशन। चलिए आपने कहा लाइसेंसिंग सिस्टम में चेंज हुआ। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम की बात हम लोग पहले भी कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, प्राइवेटाइजेशन में चेंज हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज हुआ, एटसेट्रा। आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, सब में चेंज हो गया। ओके, हुआ कि नहीं बताएं? यस सर। यस सर। यस सर। किसने किया ये चेंज? किसने किया? अपने से हो गया क्या? नो सर। नो सर। किसने किया? किसने चेंज किया ये? सर गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट मींस पॉलिटिकल सिस्टम। हम लोग जब भी बात Yes, sir. करते हैं के लिए, तो हम लोग उस समय के लिए बात करते हैं एलपीजी मॉडल, जिसको मैंने भी बताया था, एलपीजी मॉडल। और यू कैन से नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह स्ट्रेटजी, ये भी हम लोगों ने कहा था, याद कीजिए। यस सर। यस तो सर। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, बोथ represented the political power in center at that time, जिन्होंने इकोनॉमी को चेंज कर दिया। सिमिलरली जब हम लोग कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इट वाज मिखाइल गोर्बाचोव ऑफ यूएसएसआर, द प्रेसिडेंट, who changed the entire USSR system. Same is with the China right now. Same with the Korea. Any country. This is always the political system that affect the economy, and sometimes economic situations, economic challenges pressurize the political system to change its own way. Now, तो हम अभी आगे भी ट्रेस करेंगे, उसके मैं और बताऊंगा आपको। इंडिया में नेचर को कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो मेन पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो आते हैं 1970s ऑनवर्ड। 1970 के बाद से, अभी 1972 आएगा तो आप बात समझ सकेंगे क्या हुआ, मैं क्यों 1970s ऑनवर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। जब हम लोगों ने अपने देश में कई कदम उठाए 70s ऑनवर्ड्स, और आज तक उठा रहे हैं, जब हम लोग देश में इन्वायरमेंट और नेचर रिलेटेड इश्यूज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट बनाया, फिर हमने बनाया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बनाया, फिर हमने बनाया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनाया। दिस इज ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल डिसीजन लेकर यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर और यूनियन टेरिटरीज लेवल पर हमने कई सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया यूनियन के लिए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए स्टेट्स के लिए, एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज बनाई हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज के लिए। हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की। देयर आर सो मेनी थिंग्स।
ग्लोबल लेवल पर आप देखें पॉलिटिकल इकोनॉमी फॉर नेचर, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर इन इंडिया, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बनाया, गुरुग्राम में. दैट इज व्हाई IUCN सेज पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नेचर, जहां पर हम इकोनॉमी को नेचर के साथ लिंक करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं पॉलिटिकल. वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ ग्लासगो में UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सम्मेलन किया था, जहां पर तमाम देशों के पॉलिटिशियंस इकट्ठा हुए ताकि हम नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, कंट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे, उसकी हम बात कर सकें. That is how governance of nature and equitable governance of nature, effective governance of nature can be possible. Without the political decisions, you cannot ensure the governance. Because governance is by the political system in which nature's use, nature's protection, nature's conservation, balancing it with the economy must be there. That is what is we are calling about political economy of nature. Are you getting my point? Yes. Yes, sir. मैंने पहले ही आपसे ये कहा था कि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम लोग एक एक शब्द पे हम लोग घंटों बात कर सकते हैं. And this topic is very near to my heart also because I teach this environmental economics at PG level. For so many years I have been teaching this. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इससे बात कर, लेकिन in view of the limitation of time we cannot go in much details. हाँ, जब आप पीजी में पढ़िएगा, पीजी में अगर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आप बहुत सारे इकोनॉमिक डायमेंशंस, इकोनॉमिक थ्योरीज, वैल्यूएशन थ्योरीज, ये सब आप तब पढ़ पाएंगे. यहाँ पर हम लोग उसको नहीं यूज कर पाएंगे. हम लोगों ने कहा तो वैल्यूइंग द नेचर, लेकिन नेचर वैल्यू कैसे करें, इसके मॉडल्स और थ्योरीज है पूरी. बट दैट इज नॉट फॉर अस एट दिस जंक्चर बिकॉज वी आर जस्ट focusing on how the term has evolved and what is the meaning of this concept. हमें इतना ही confine करना है, इसलिए उसमें मैं बहुत बात तो नहीं कर पाऊंगा and बहुत डिटेल हो जाएगा जो आपके लिए अभी है भी नहीं समझने के लिए. But yes, I invite the questions always so that if there is any confusion, I can give you some ideas about that particular point. And environment is very challenging, and this is nature, environment are integral part of now any subject. जो लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं उनका भी हिस्सा है इन्वायरमेंटल एथिक्स. जो लॉ पढ़ते हैं उनके लिए भी है इन्वायरमेंटल जस्टिस. बाकी इन्वायरमेंटल साइंस तो सब पढ़ते ही हैं. The environment is integral part of every field of subject. Anyway, so I have given a very brief idea about the first milestone. That was I was talking about IUCN. And very briefly, I have given what is IUCN, when it was set up, and especially Red Data Book and World Conservation Strategy, in which the focus is on 3 key areas of nature-based solutions. Is it okay or any other question on this part? Sir, please give example of underuse of potential of nature. Okay. I mean, you are talking about the second point. Yes, sir. Okay. I have mentioned on one hand, number 1 point, on one hand, we are having a very undesirable pattern of production and consumption. Undesirable from nature's point of view, from environment point of view, undesirable. And that is destroying our life supporting system. You look at what is happening in Delhi. We are not able to breathe clean air. Dangerous level of pollution.
air quality index has reached the red zone, AQI. And we are destroying the nature, and right side system destroying water. We are destroying water. We are destroying air. We are destroying soil. We are destroying seas and oceans also. Now oceans are filled with plastic waste. So our production, our consumption pattern, destroying it very dangerously. That first point is very clear. Now, second point is, and people, communities, government and private sectors, everybody, all are involved, are underusing the potential power of nature, and solution is can provide. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे वो लोग हों, समुदाय हों, सरकारें हों या निजी क्षेत्र हों, वो सब प्रकृति की जो संभावित क्षमताएं हैं और समाधान के जो रास्ते इस प्रकृति दे सकती है, उसका हम अल्प प्रयोग कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजिंग. I can give you one very simple example and you will understand it very beautifully. ये बताइए कि आज पॉल्यूशन के लिए, जो आप पॉल्यूशन अपने आसपास देखते हैं, उसके लिए कोई एक मेजर रीजन क्या है पॉल्यूशन का, बताइए. हमने एयर क्वालिटी की बात की, मैंने दिल्ली की बात की, हर जगह क्या रीजन है? डिफॉरेस्टेशन. हाँ, क्या कारण, किस लिए emissions इतने हो रहे हैं, इतने एमिशन, इतना प्रदूषण उत्पन्न क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन. Vehicular pollution, sir. व्हीकल मोटर वाहन का प्रदूषण. डिफॉरेस्टेशन. आपने कहा मोटर वाहनों का प्रदूषण हो रहा है, एमिशंस, वायु प्रदूषण मोटर वाहनों से हो रहा है. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो रहा है. वेरी गुड. सर Responsibility. डिफॉरेस्टेशन से भी होता है सर. Somebody has not muted the mic. उसको माइक म्यूट कर लें. किसी के पीछे से आवाजें आ रही हैं. Yes, please tell me, क्या कह रहे थे आप? सर डिफॉरेस्टेशन से भी होता है सर, बिकॉज सर जहाँ जब नेशनल हाईवे बनते हैं साइड. प्लीज म्यूट योर माइक, वरना आपके घर की आवाज सुनाई पड़ रही है मुझे. घर में क्या बातचीत हो रही है? सॉरी सर. सर आई वाज सेइंग दैट डिफॉरेस्टेशन जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं. हमने कोई एक पॉइंट हाईलाइट कीजिए कि जो आज प्रदूषण है उसका कोई एक पॉइंट बताइए, तो हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे. डबल बर्निंग. Sir, lack of the better disposal system. तो आपने बहुत सारे रीजन बता दिए. डिस्पोजल ऑफ व्हाट? Plastics. प्लास्टिक्स. ओके. Tires. So throwing garbage here and there. देखिए, डबल बर्निंग. अगर आप आज इंडिया में एयर पॉल्यूशन के रीजंस को ट्रेस करेंगे और उसमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज को आप देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो रीजन आएगा वो आएगा मोटर वाहन से होने वाले एमिशंस, मेनली डीजल एमिशंस हैं. सेकंड पे आता है पेट्रोल. डीजल इज मोर पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल. ओके, एंड दैट इज व्हीकल एमिशन जो आप बात करे थे वो है. नाउ अगर हम, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स, या आपने कहा, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर की बर्निंग है, उसके कारण हो रहे हैं, धुआं हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर हम इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम ग्रीन फ्यूल्स उपयोग करने लगे, चाहे वो घरों में हो चाहे मोटर वाहनों में हो, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है. हो सकता है सर. अगर हम इन प्लेस ऑफ, हम सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादन करते हैं भारत में आज भी, वो होता है कार्बन सोर्सेज बेस्ड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज थर्मल पावर. जहां पर हम कोल एंड ऑयल बर्न करके
हम बिजली बनाते हैं। ये है कि नहीं बताइए? द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन इंडिया एनर्जी सेक्टर इज थर्मल एनर्जी आज की तारीख में। तो नाउ व्हाट इज नेचर बेस्ड सोल्यूशन? नेचर बेस्ड सोल्यूशन इज टू रिप्लेस this type of energy sources to nature based energy sources. The best example for India is solar energy, wind energy, geothermal energy. These are the best nature based solution. जो मैंने अभी आपसे कहा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्ल्ड लेवल का जो हुआ और जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया, वो हेडक्वार्टर ही बनाया गया इंडिया में, हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पर पूरा वर्ल्ड सोलर एनर्जी को प्रमोट करके डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स कम करने की बात कर रहा है। देयर आर सो मेनी सोलर विलेजेस नाउ इन इंडिया। सोलर स्ट्रीट लाइट्स आर देयर इन इंडिया. Rooftop solar panels are found in many houses, hotels, business establishments, offices, etc. Everywhere you can see that is nature-based solution. But we are still underutilizing the nature-based solution. Still, we are underutilizing. Now, somebody says, okay, there is dust is one of another reason of air pollution. Dust, dhool. That is why we have so many new policy measures also in India, like Green Highway Mission. यानी हाईवे के दोनों किनारों पर, राजमार्ग दोनों किनारों पर 2 rows of trees लगाए जाना. They will absorb the dust, they will absorb the sound, and also that will sink for the pollution. Green India Mission. Green India Mission is a mission of forestation. Quantity and quality of forest increase करना. It will all again absorb the carbon sink, and also regulate the temperature of the global warming also. There are so many nature-based solutions, but the entire world is not fully utilizing the potential of nature to meet these challenges of climate change, food security, and socio-economic development. Even nature can provide you more food. Nature can give you livelihood resources also. Forest-based produce, minor forest produce gives you livelihood also, food also. That is, nature can give you solution, but we are not utilizing nature's potential to its full extent. That is what we have mentioned in point 2 for IUCN's work. बताइए, बात समझ में आई कि नहीं कुछ? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या नहीं बताइए? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी ने कुछ जलाने की बात की, जरा बताइए किसने क्या कहा था, क्या जलाने पर होता है? वो रिपीट करें अपनी बात. हाँ, Plastics. कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है बताइए? सर पंजाब हरियाणा, जिसके कारण नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उसके जलने से। बताइए सोल्यूशन आप क्या सोचते हैं? बताइए सोल्यूशन बताइए मुझे पहले. हालांकि सरकार ने कानून बनाए इसके लिए कानून बनाए, जिसको हिंदी में हम लोग पराली जलाना कहते हैं, स्टबल बर्निंग, उसके लिए कानून बनाए हैं. इंसेंटिव भी दे रही है गवर्नमेंट. नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है बताइए मुझे इस पर. सर हम उसे एज अ ग्रीन मैन्योर यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, छोटा सा देश है कंबोडिया. कंबोडिया में एक एनजीओ ने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया
उन्होंने किया कि जहां खेतों में ये वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं जिनको लोग जला देते हैं, उन्होंने उसको वेट के हिसाब से खरीदना शुरू किया। उन्होंने कहा, आप हमें भेजिए, हम आपसे खरीद रहे हैं। अब मुझे बताइए कि किसान अगर उस चीज को जिसको जलाने की बात सोचता है, अगर वो कोई उसे खरीदे तो वो बेचेगा कि नहीं? बिल्कुल बेचेगा। यस सर। क्योंकि उससे इनकम हो रही है। और इस ग्रुप ने उसको खरीदना शुरू किया। और आपको बताऊं, कभी आप अच्छे चैनल देखिए, जो नेचर पर बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उसमें मैं उन्हीं में देख रहा था, वो उसकी लुगदी बना लेते हैं और उससे इतने तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे कि उससे डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स, प्लेट, कप, चम्मच, इतने तरह की चीजें उससे बन जाती हैं जो उसको मार्केट में बेचते हैं और जो कि बायोडिग्रेडेबल है। किसान ने बेचा, उसको लाभ हुआ। संस्थाओं ने उसको अन्य उत्पादों में चेंज करके बेचा, उनको लाभ हुआ। और नेचर को भी लाभ हुआ क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं हुआ। That is also one very good example of nature-based solution for this particular issue. And now this is being developed in India also by many manufacturing units. अब भारत में भी ये काम शुरू हो रहा है। Started from Cambodia, then went to other places, etc. तो वहां से शुरू होता है ये। बड़ी उपयोगी चीजें उसकी बनती हैं। और आपने अगर कभी आपने कि अच्छे जगह पर मेला देखा हो, तो प्रगति मेला में मैंने कई साल पहले देखा था कि जहां पर उन्होंने इसी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर से उसकी लुगदी बनाकर उससे बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हैं। स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनाई हैं, जिसपे पेंट उन्होंने किया है, वो भी नेचुरल पेंट, नेचर का पेंट, नॉट आर्टिफिशियल पेंट, जो आपको लगेगा देखने में कि पता नहीं किस धातु की बनी होगी। जब छुएंगे पता कि ये 10 ग्राम 20 ग्राम वेट है। मैंने पूछा पहले कि ये तो हम लोगों ने सब घास फूस और उन चीजों से बनाया है जो खेती में वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है, उससे बनाया है ये। इट वाज सम मैन्युफैक्चर फ्रॉम तमिलनाडु, जिसको मैंने देखा था, और वो कई वर्षों से मेरे पास आज भी है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दीज आर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। चाहे वो ईंधन के लिए सोल्यूशन हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का सोल्यूशन हो, नेचर प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन आल्सो, बट वी आर अंडर यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ नेचर फॉर आवर ओन challenges. I can give you only brief ideas, but I will not be able to discuss much length because each and every point is so lengthy and so interesting also. This is the food for your thinking also. Think and try to read in much details of all these issues you get everywhere. Extensive literature on these points also. Excuse me, sir. But we can't write. हमें जब लिखना हो इतना सब कहाँ लिख सकते हैं? हाँ, लेकिन जानना जरूरी होता है। Excuse me, sir. Yes. सर, आपने जैसे बोला कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या कोई भी तरह का पोल्यूशन हो सर, उसमें कई अलग अलग पोल्यूशन के सर अलग अलग टैकल करने के रास्ते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे। यस सर, यस सर। सर, ये सारे रास्ते तो हमें पता होते हैं, गवर्नमेंट को भी पता है, उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है सर, काफी कुछ ग्रोथ भी कर सकता है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आ जाती है कि सरकार ही कुछ नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग ने यहाँ पर लिखा, फिर से गौर कीजिएगा कि जब हमने लिखा है पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले लिखा है मैंने पानी कि
हमने कहा समाज भी होता है। पहले तो थोड़ा सोचते आसान होगा। एक समाज वो होता है जो बहुत अवेयर होता है, जिसका बिहेवियर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक समाज वो होता है जो अवेयर नहीं होता, या अवेयर होता है लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, या तो ना अवेयरनेस मालूम है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है। So there are different type of people, different type of community, different type of societies also. कोई समाज अंधविश्वासी होता है, कोई समाज अंधविश्वासी नहीं भी होता है। कोई समाज सुपरस्टिशंस पर बेस्ड करता है, रूढ़िवादियों पर, और कोई उस पर बेस्ड नहीं करता है। दो तरह के लोग होते हैं। नाउ आपने कहा कि सरकार नहीं करती है, तो मैं आपको दर्जनों ऐसे प्रोग्राम्स और 20 ऐसे कानून की लिस्ट दे सकता हूं जो आज नहीं बहुत साल पहले से हैं और हर डायमेंशन नेचर पर फोकस करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, this is responsibility of each and every individual also. हम पहले यहां शुरू करें तो मेरे ख्याल से जो आपकी बात थी वो समझ में आ जाएगी। जरा आप खुद सोच के बताइएगा कि हम लोग एज इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन कितना करते हैं। इंडिविजुअल से स्टार्ट करें, हम कितना पानी संरक्षित करते हैं? सर बहुत कम है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ग्रासरूट एग्जांपल दूंगा आपको, तो आपको बात समझ जाएगी। आप कहीं पर भी, जैसे आजकल शादियों का मौसम है, शादियों में आप डिनर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, और वहां पर एक वाटर के लिए एक कोने में जगह बनी होती है जहां पर पानी के बॉटल 100 ml 200 ml छोटे छोटे बॉटल रखे थे। आप एक बॉटल उठाइए, पानी पी लीजिए। पानी बॉटल रखे रहते हैं कि नहीं, बताइए? पैक्ड वाटर बॉटल्स होते हैं। आप देखिए लोगों ने एक बॉटल लिया, उसमें 2 घूंट पानी पिया, बाकी सब पानी फेंक दिया, उसमें पानी आधे ज्यादा बचा हुआ फेंक दिया नीचे, बॉटल सहित वहां पर डस्टबिन में डाल दिया। बताइए ये आम तौर पे आपने देखा है कि नहीं? यस सर, अक्सर होता है। आपने खुद भी किया हो? नो सर, मैंने नहीं किया कभी। अब हो सकता है ना किया हो, लेकिन अगर आपने देखा है तो अधिकांश लोग ये करते हैं कि नहीं, बताइए हमें। यस सर। तो बताइए इसमें गवर्नमेंट का रोल कहां आएगा? बस आप ये बता दीजिए मुझे। When we ourselves don't behave responsibly, तो सरकार तो विज्ञापन निकालती है ना कि पानी बचाइए, पानी दुरुपयोग ना कीजिए, लेकिन अब हम उसको ना समझें, ना व्यवहार में अपनाएं, तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कैसे करें? हमने बहुत ग्रासरूट एग्जांपल दिया अभी आपको। मैं इसलिए हमेशा कभी भी जाता हूं या कभी भी डिपार्टमेंट का फंक्शन है जहां वाटर बॉटल सजा दी गई, तो मैं सबसे कहता हूं कि भाई ऐसा कीजिए, पानी पी लीजिए, और जितना बचे उस पानी की बोतल को अपने साथ लेते जाइए, उस पानी को भी पीजिएगा, उसको वेस्ट मत कीजिएगा। या इसका प्रयोग बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में मैंने देखा है, जहां पर टिफिन में सारे बच्चे अपने साथ वाटर बॉटल ले जाते हैं, थोड़ा पीते हैं, थोड़ा बच जाता है। तो उन स्कूल्स में ये सिस्टम किया गया है कि जहां स्कूल से निकलने का जगह है, वहां पर उन्होंने बाल्टी रख दी है कि जब बच्चे लौटे तो जो पानी बचा उस बाल्टी में डाल दें, ताकि वो पानी फिर पेड़ों में डाला जा सके, उस पानी का फिर से यूज किया जा सके, उसको वेस्ट ना किया जाए। These responsible behavior starts from the childhood. बताने वाले लोग होने चाहिए, समझने और अपनाने वाले लोग भी होने चाहिए। लेकिन अब न तो लोग बताते हैं, और बताने के बाद न लोग समझते हैं और न अपनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इलाहाबाद में अगर आप हैं तो आप जाइएगा, अक्सर लोग संगम जाएंगे, गंगा जाएंगे, और जब जाएंगे तो अपने साथ
फूल मालाएं और बहुत सी चीज लेके जाएंगे, और वो चीजें हमेशा प्लास्टिक के थैले में लेके जाएंगे और थैला सहित उसको गंगा में डाल देंगे। ये भी आपने देखा होगा या नहीं देखा? ये भी देखा है सर। देखा है। और जब श्रद्धा होगी तो पानी में आप सिक्के भी डाल देंगे, कॉइन्स डाल देंगे, ताकि आपकी दक्षिणा गंगा स्वीकार कर ले। कभी आपने सोचा कि जो आपने कॉइन डाला है वो मेटल है, और वो मेटल गंगा के ऑक्सीजन लेवल को चोक कर देता है, उससे वाटर क्वालिटी खराब होती है, गंगा का जीवन खतरे में पड़ा, लेकिन आपने सिक्का डाल दिया। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करे बताइए आप? We know that it is not good, but still we keep on doing that. Maybe sometime religious, sometime social, or sometime other behavioral changes that we do. तो ये हम लोग करने लगते हैं। हमने देखा है जब भी ट्रेन अगर गंगा को जा रही है तो सब लोग तुरंत खिड़की से सिक्के फेंक देंगे गंगा में। This is against the interest of nature, but we don't think that. पानी का टैप खुला हुआ है, पानी बह रहा है, but we don't close it. ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, पानी खुला हुआ है तो खुला रहेगा। It is very grassroots level examples. अगर घर में बत्ती जलाइए तो शायद बंद कर दें जब जाते वक्त, लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन में है या यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में है तो nobody will bother to switch off the light or fan. Nobody will bother. आप अपने आसपास वो देख सकते हैं, अपने क्लासरूम में देख सकते हैं। We throw all the waste on the road, जबकि नहीं करना चाहिए। I always give example कि सरकार, आपने कहा सरकार कुछ नहीं कर, सरकार तो रोज कहती है कि ग्रीन और ब्लू दो तरह के वेस्ट कलेक्शन बॉक्सेस हैं, गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए, लेकिन हम में से कोई नहीं करता है उसको। हम लोग कहते हैं कि अपने मोटर व्हीकल्स का, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जो भी हो, उसका रेगुलर पॉल्यूशन चेक कराइए, लेकिन हम लोग उसको कागज पे बनवा लेते हैं, एक्चुअल चेक नहीं करवाते हैं। There are so many issues that has to be given a serious thinking. तो हम लोग कैसे कहें कि हम लोग जानते हैं कि जो आपने कहा कि स्टबल बर्निंग, पराली जलाना खराब है, फिर भी जलाते हैं लोग। सरकार ये तो कहेगी ना कि ठीक है मोटर गाड़ी कम चलाइए। अब देखिए कितने विज्ञापन आते हैं टीवी पर, हफ्ते में एक दिन ही कम से कम आप गाड़ी मत निकालिए, शेयर कर लीजिए। यहां तक कि दिल्ली सरकार तो ऑड इवन डेज निकालने पड़े कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी, दिन इवन नंबर तक, कम से गाड़ी तो कम चलाएं। तो मैं आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर बता दूंगा आपको कि क्या फर्क है। दो नए टर्म आपके सामने आ जाएंगे, लीनियर इकोनॉमी, रैखिक अर्थव्यवस्था, एंड सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। The solution of the environmental issues lies in circular economy, not linear economy. तो मैं आपको आगे हिस्से में आगे बताऊं क्या फर्क है। There are so many issues, वो चाहे एयर से रिलेटेड हो, वाटर से हो, सॉयल से हो या नॉइज से हो। Why we behave in a peculiar way in spite of knowing that high volume loudspeakers, high volume music speakers will create noise pollution.